Behold, how good and pleasant it is when brothers dwell in unity. It is like the precious oil on the head, running down on the beard of Aaron, running down on the collar of his robes. It is like the dew of Hermon, which falls on the mountains of Zion. For there the Lord has commanded the blessings, life forevermore. देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यह हरमोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वहीं सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। My friends, I greet you in the most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ in this worship service. मैं परमेश्वर पिता के नाम से आप सभी का स्वागत आज की इस आराधना के अंदर करता हूं। और जैसा हम सबको पता है कि आज एडवेंट सीज़न का फर्स्ट संडे है और जब हम इसको सेलिब्रेट करते हैं तो ये एक चिन्ह है, ये एक रिसेम्बलेंस है कि यीशु मसीह पैदा हो चुके हैं और उद्धार जो यीशु मसीह के द्वारा इस संसार के अंदर आया वो आज से 2020 वर्ष पहले इस संसार को उसने ज्योति दी, इस संसार को उसने आशा दी और इस संसार को उसने जीवन को दिया। We have been living in our darkness by doing sins, by doing these all such transgressions in front of God which is not acceptable in front of Him. But we have privilege to follow God because of Jesus Christ, that He has come to this world to give us salvation, to give us hope, and to give us abundant life. God bestowed His abundant love through Jesus Christ to the world. He poured out His blessings, He poured out His salvation upon the world. परमेश्वर इस एडवेंट सीजन पर, इस क्रिसमस पर हम सबको आशीष दे। आइए हम आज की वर्शिप की शुरुआत प्रार्थना के साथ करेंगे और हम सब अपनी आंखों को झुकाएं और दुआ मांगे। Thank you, dear gracious Heavenly Father, for the wonderful morning that you have given us as we all gather together in this worship, Lord, through media. Be with us. And Lord, I commit each and every one of us into your mighty hand. And today's worship, today's praise and worship, and today's sermon, today's everything shall acceptable unto you, O Lord. And Lord, pour out your abundant blessings upon all of us. And Lord, open our hearts, mind and soul so we may see you. And Lord, we may grab your words in our lives. We may hold you, Lord, throughout our whole life. And Lord, today's worship acceptable unto you. And Lord, thank you for the such wonderful morning that you added in our lives to see your glory, to see your grace, to see your mercy, Lord. Thank you for the such wonderful, wonderful, Lord, your love to us. Thank you for each and everything. Once again, we commit every one of us into your mighty hand and we ask this pray in Jesus' most precious name. आमीन। अजीज़ों, अब यह वक्त होगा कि हम अपने पहले गीत को गाएंगे जो कि पाया जाता है हिंदी गीत की पुस्तक उसका 96 सॉन्ग, सुनो फल्की फौज शरीफ गाती यीशु की तारीफ। We will sing our first song which is found in Hindi Methodist book number 96, सुनो फल्की फौज शरीफ गाती यीशु की तारीफ। आइए हम सब इस गीत के दौरान परमेश्वर पिता को महिमा दें। Let us glorify God during this song. की तारीफ आ रहे
फलक से मेरा होगा, तो मुबारक सबका हो। बैतलहम के बच्चे को सुनो फल की फौशरी, गाती यीशु की तारीफ। जो महमूद इंसानों का, जो महमूद ज़मानों का, वो कुंवारी से मौलूद जिस्म में अबा मौजूद। वह मुजस्सम है कलाम, ऐ खुदा इंसान सलाम। पहले आदम का लिबास है खुदा हमारे पास। सुनो फल की फौशरी, गाते यीशु की तारीफ। सलामती अबा, तू जो रात सिखाता, सबको जिंदगी और नूर, तू ही बसता है भरपूर। खाली से सब अपनी शान, ना हमारे फिर इंसान। बानी आदम हो बुलंद, दूसरे जन्म के फर्जंद। सुनो फल की फौशरी, गाते यीशु की तारीफ। कौमों की मुरादबा, हमें अपना घर बना। उठे औरत की नस्ल, हमें सबका से पूछा। शक आदम की मिटा, अपनी सूरत में बिठा। दूसरा आदम ऊपर से, अपनी उल्फ से भर दे। सुनो फल की फौशरी, गाते यीशु की तारीफ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद है इस सुंदर गीत के लिए। अजीजों, अब ये वक्त होगा कि हम अपने ईमानों का इकरार परमेश्वर के आगे करेंगे। वी विल कन्फेस आवर फेथ बिफोर गॉड बाय रीडिंग अपोस्टल्स क्रीड, which is found in English book number 738 and in Hindi page number 1। हम रसूलों का कीदा सब लोग एक साथ मिलकर कहेंगे। मैं एतिकाद रखता हूँ खुदा कादिर मुतल्लक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, कि वह रूह कुदूस से मुजस्सिम होकर कुमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतल्लक के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वह जिंदों और मुर्दों के इंसाफ करने को आएगा। मैं एतिकाद रखता हूँ रूह उल कुदूस पर, पाक कलीसिया आम पर, मुक़द्दस रिफ़ाकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। अजीज़ों, हम लोग सब ऐसे ही इस आराधना में बने रहेंगे और हम उत्तरवादी पाठ में से निकाल लेंगे, जो कि पाया जाता है भजन संहिता उसका 102वां भजन 1 से लेकर 12 वचन तक, जिसको पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे मिस्टर रॉबिन मैसी। For today's responsive reading has been taken from the book of Psalm number 102,
102, verses beginning from 1 to 12, and it will be led by Mr. Robin Massey, and afterwards we will sing Gloria Patria. हम लोग बाद में हो स्तुति हो सिताइश बाप की एक साथ मिलकर गाएंगे. May I request Mr. Robin Massey please come and lead us in responsive reading. सबको जय मसीह की. परमेश्वर पिता का धन्यवाद है सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए कि आज उसने हम सबों को जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा. और आइए हम सब परमेश्वर के वचन में से पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संहिता 102 और 1 से लेकर 12वीं आयत तक पढ़ेंगे. पहली आयत मैं पढ़ूंगा, दूसरी आप पढ़ेंगे और 12वीं आयत हम सब मिल के साथ में पढ़ेंगे. हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे. मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे ना छिपा ले. अपना कान मेरी ओर लगा, जिस समय मैं पुकारूं उसी समय फुर्ती से मेरी सुन ले. क्योंकि मेरे दिन धुएं के समान उड़े जाते हैं और मेरी हड्डियां लुकटी के समान जल गई हैं. मेरा मन झुलसी हुई घास के समान सूख गया है और मैं अपनी रोटी खाना भूल जाता हूँ. कराहते कराहते मेरा चमड़ा हड्डियों में सट गया है. मैं जंगल में गणेश के समान हो गया हूँ. मैं उजड़े स्थानों के उल्लू के समान बन गया हूँ. मैं पड़ा पड़ा जागता रहता हूँ और गिर के समान हो गया हूँ. मेरे शत्रु लगातार मेरी नामधराई करते हैं. जो मेरे विरोध की धुन में बाबेल हो रहे हैं, वे मेरा नाम लेकर शपथ खाते हैं. क्योंकि मैंने रोटी के समान राख खाई और आंसू मिलाकर पानी पीता हूँ. ये तेरे क्रोध और कोप के कारण हुआ है, क्योंकि तूने मुझे उठाया और फिर फेंक दिया है. मेरी आयु ढलती हुई छाया के समान है और मैं आप घास के समान सूख चला हूँ. परंतु हे यहोवा, तू सदैव विराजमान रहेगा और जिस नाम से तेरा स्मरण होता है वह पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा. आइए अजीज़ों, हम लोग सब अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना मांगें. We'll pray for our congregation. We will pray for each and every activities of our church. We will pray for our lives. We will pray and we give thanks for God's mercies, for God's grace and His abundant blessings to us. We will pray for those who are sick. We will pray for those who are celebrating their birthdays, their wedding anniversary during this week. We will pray for each and everything, and also we will put our supplications before God, because He is silent listener and good doer. वो हमारा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है और अपने कार्यों को हमारे जीवन में करने वाला परमेश्वर है. Let us bow down our heads and let us look to God in prayer. Thank you, dear gracious and Heavenly Father, for the wonderful moment that you have given us, O Lord, as we all joined in this worship service through media, Lord. And Lord, thank you for the wonderful presence of you, Lord, which you bestowed among us. Thank you for each and everything, Lord. And we know that, Lord, we all are sinners and we cannot come into your presence, Lord. But we are well privileged that you have given us your Son, your begotten Son.
And through His blood, through His sacrifice, we have been pardoned by You, Lord. And Lord, we have privilege to be called as co-heirs of You, Lord, through Jesus Christ. Lord, I especially pray for our church. And Lord, I commit each and every one of us into Your mighty hand, every members of this church into Your mighty hand, Lord. Be with them and pour out Your abundant blessings upon them, O Lord. And Lord, also, whatever they may have problem in their lives, remove these all hurdles, these all obstacles from their lives, Lord. And Lord, touch them. And Lord, also fulfill their needs and fulfill their visions, Lord. And all will be glorified Your name. And Lord, also we pray for every committees of our church. We commit them into Your mighty hand, every chairpersons of our church, of the committees of various organizations what we have in our church, Lord, into Your mighty hand, Lord. Be with them and provide Your wisdom and Your knowledge to them so they may, Lord, run Your organization for Your glory only, Lord. And Lord, also we pray for our conference, DRC. Lord, we pray for our bishop and his family. We pray for every leaders, August body, Lord, of DRC, Lord. We commit all of them into Your mighty hand. Bless them abundantly, Lord. And also, Lord, remove every hurdles, every problem from their lives. And we commit their lives into Your mighty hand. Provide Your wisdom and Your knowledge to them, Lord, so they may follow You. They may walk, Lord, behind You, Lord. And also, Lord, lead them wisely and lead them, Lord, in such a way where Your name will be exalted. Lord, we pray for our pastor in charge, Reverend Dr. John R. Vishwas and his family, Lord. And we are very thankful to You, Lord, for the recovery that, Lord, You healed him. And Lord, also You brought him back to his work. And Lord, we commit his life into Your mighty hand. And Lord, thank You for the such wonderful and marvelous leadership that You provided to AMC, to Apostle Methodist Church. Lord, thank You. And Lord, also we commit him into Your mighty hand, Lord. Save him from every harm and from every dangers. And Lord, also use him mightily for Your glory. और पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पास्टर मन कुमार राय, उनके परिवार के लिए भी, उनको भी हम आपके हाथ में देते हैं। उनको भी आप महफूज रखें, उनको भी आप आशीष बरकत दें। और पिता, प्रार्थना करता हूँ मेरे लिए भी और मेरे परिवार के लिए भी आपका धन्यवाद देते हैं। आपने ये मौका दिया कि हम पिता अपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च को सर्व करें, हमारे साथ रहें, आशीष बरकत दें। पिता, धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर पिता वर्शिप के लिए। और पिता, सब कुछ हम आपके हाथ में देते हैं। हम खास तौर से दुआ चाहते हैं आज के सरमन के लिए, जबकि पिता आपका वचन जब रेवरेंड डॉक्टर जॉन आर विश्वास हमारे बीच में देते हैं, वो नहीं बल्कि आपका पवित्र आत्मा उनसे बात करे। और जो कुछ आज हम सुनते हैं, सीखते हैं, पिता, वो आप सबको, पिता, आपको ग्रहण योग्य हो। और पिता, आपका नाम हमारे जीवन के द्वारा ऊंचा उठाया जाए। हम दुआ चाहते हैं पिता, हमारे जितने भी मिशनरीज़ हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन जो इस पूरे भारतवर्ष में कार्यरत हैं, सबों को हम आपके हाथ में देते हैं। पिता, सबको आप संभाल के रखें। हम प्रार्थना करते हैं खास तौर से जो बीमार हैं, पिता, जो इस कोविड की चपेट में है, पिता, हम दुआ चाहते हैं कि आपकी मर्सी, आपकी ब्लेसिंग्स और आपकी हीलिंग, पिता, उनके जीवन में बनी रहे। और वो पिता हर बात से महफूज रहें। और पिता, उनको आप चंगाई दें। हम धन्यवाद देते हैं खास तौर से भाई दीपक के लिए कि आपने उनको चंगाई दी। और पिता, वो अपने कार्य में, पिता, अपने काम पर वापस आने वाले हो सके, उनको संभाल के रखें। उनकी पूरी फैमिली को भी हम आपके हाथ में देते हैं। और पिता, हम दुआ चाहते हैं जितने भी लोग पिता परेशान हैं और जितने भी लोग पिता नीडी हैं, उनकी भी आप सुध रखें, उनको भी आप पिता मुहैया करवाएं, उनको भी आप ठीक प्रकार से पिता रखें। पिता, हम दुआ चाहते हैं हमारे
कंट्री के लिए, इंडिया के लिए, हम दुआ चाहते हैं हमारे राज्य के लिए, हम दुआ चाहते हैं हमारे एक एक डिस्ट्रिक्ट के लिए। पिता, पूरे भारतवर्ष को हम आपके हाथ में देते हैं। और पिता, बहुत हुआ ये कोविड का दौर, पिता आप होने दीजिए कि अगले साल से पिता एक आशा की किरण इस पूरे वर्ल्ड के अंदर आने वाला हो। और पिता, जब हम क्रिसमस को भी सेलिब्रेट करते हैं तो आपका एक पैगाम छुटकारे का, चंगाई का, उद्धार का, आशीषों का इस पूरे संसार में आए। और पिता, हम सब चीज़ें, सब बातें आपके सामने रखते हैं। हम दुआ चाहते हैं हमारे चर्च की एक एक नीड्स को हम आपके आगे रखते हैं। पिता, आप पिता पूरी चर्च की नीड्स को आप अपने हाथों में लें। और पिता, सारे जो आगामी प्रोग्राम्स हैं, अभी ये भी नहीं पता पिता कि हो पाएंगे या नहीं, मगर फिर भी हमारी आशा है कि आप महान परमेश्वर हैं और आप असंभवताओं को संभवताओं में बदलने वाले परमेश्वर हैं। और पिता, हम धन्यवाद देते हैं ऐसे जीवन के लिए, उन लोगों के लिए जो अपने बर्थडेज और वेडिंग एनिवर्सरीज को पिता इस सप्ताह बनाने जाते हैं। उनके साथ रहें, उनको भी आप आशीषित करें। एंड लॉर्ड, give them abundantly and pour out your abundant blessings upon them, so they may follow you, Lord, and they may glorify your name on high. And Lord, also we pray for every activities into your mighty hand. We commit today's worship also into your mighty hand, Lord. You are the greatest master, you are the healer, you are our creator. And Lord, we commit and we put every supplication unto your feet, O Lord. Lord, kindly hear our prayer. And thank you, Lord, for being with us. And thank you for your presence, which is mighty and abundant in nature. Thank you for everything. Thank you for hearing our prayer. We ask this pray in Jesus' most precious name, as you taught us to pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And do not let us fall into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, power, and the glory, forever and ever. Amen. May God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अजीज़ों, अब ये वक्त होगा कि हम आज के मनन के पाठ में से निकाल लेंगे, जो कि पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय 46 से लेकर 56 वचन तक। For today the scripture portion has been taken from the Gospel according to St. Luke chapter 1, verses beginning from 46 to 56, and English reading will be read by Mr. David George. Nepali reading will be read by Mrs. Centrila Rimal, and Hindi reading will be read by Miss Charu Pandey. आज का जो मनन का पाठ लिया गया है वो लिया गया है लूका रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय 46 से लेकर 56 वचन तक, जो कि हिंदी की जो रीडिंग है वो मिस्टर डेविड जॉर्ज के द्वारा होगी, नेपाली मिसेस सेंट्रीला रिमल के द्वारा होगी, और हिंदी मिस चारू पांडे के द्वारा होगी। आइए हम आज के वचन के पाठ को हम सुने। The scripture reading is from Luke chapter 1, 46 to 56. And Mary said, My soul glorifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Saviour, for he has been mindful of the humble state of his servant. From now on all generations will call me blessed, for the Mighty One has done great things for me. Holy is his name. His mercy extends to those who fear him, from generation to generation. He has performed mighty deeds with his arm. He has scattered those who are proud in their innermost thoughts. He has brought down rulers from their thrones, but has lifted up the humble. He has filled the hungry with good things, but has sent the rich away empty. He has helped his servant Israel, remembering to be merciful to Abraham and his descendants forever, just as he promised our ancestors. Mary stayed with Elizabeth for about 3 months and then returned home. Amen. प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा सबैलाई जय मसीह। आउनुहोस् हामी बाइबल पाठ गर्न गइरहेको छौँ।
लुका 1को 46देखि 56सम्म। अनि मरियमले भनिन्, मेरो प्राणले परमप्रभुको प्रशंसा गर्छ, औ मेरो आत्माले परमेश्वर मेरो मुक्तिदातासँग खुसी भएको छ, किनकि उहाँले आफ्नो दासीको नम्रतामा कृपा दृष्टि गर्नुभयो। किनभने हेर, अब उत्पन्न सबै पुस्तकले मलाई धन्यको भन्नेछन्, किनकि सर्वशक्ति महानले मेरो निम्ति ठुलो काम गर्नुभएको छ, औ उहाँको नाउँ पवित्र छ, औ उहाँको भय मान्नेहरूमाथि उहाँको दया पुस्तोसम्म हुन्छ। उहाँले आफ्नो बौलीको सामर्थ्य देखाउनु भएको छ। उहाँले घमण्डीहरूलाई तिनीहरूको मनमा कृपालुमा तितर-बितर पार्नु भएको छ। उहाँले अधिकारलाई तिनीहरूका सिंहासनमा हटाइदिनु भएको छ, औ नम्रताहरूलाई उचालिनु भएको छ। भोकाएकाहरूलाई उहाँले असल चीजले तृप्त पार्नु भएको छ, औ धनीहरूलाई उहाँले रित्तै पठाइदिनु भएको छ। उहाँले कृपा समेत गर्नको निम्ति आफ्नो सेवक इजरायललाई सहायता दिनुभएको छ। उहाँले आफ्नो पुर्खाहरूलाई भन्नुभए झैं अब्राम र उहाँको वंशलाई सदा सर्वदै, अनि मरियम तिनीकहाँ प्रेरित 3 महिना बसेर आफ्नो घर फर्किए। आमेन। आप सभी को जय मसीह की। आज मैं पढ़ूंगी लूका उसका पहला अध्याय 46 से 56 तक। तब मरियम ने कहा, मेरे प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है, और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसका नाम पवित्र है, और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपने भुजबल दिखाया, और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। उसने अपने सेवक इज़राइल को संभाल लिया कि अपने उस दया को स्मरण किया जो अब्राहम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसे उसने हमारे बाप दादाओं से कहा। मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रहकर अपने घर लौट आई। परमेश्वर के वचन सुने और पढ़े जाने पर आशीष हो। आइए आज के हम वचन में जाने से पहले हम प्रेज एंड वर्शिप में भाग लेंगे, जो कि हमारे MMF के द्वारा प्रस्तुत होगा। Let us glorify God by singing these songs, by joining with Church MMF। हमारे Church MMF के द्वारा हम इस गीतों के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, परमेश्वर पिता को महिमा देंगे। और जैसा कि फर्स्ट एडवेंट है और हम सब जॉयफुली इन गानों को गाएंगे और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। आइए हम लोग सब इन गीतों के माध्यम से हम परमेश्वर पिता को महिमा दें। और मैं निवेदन करता हूं हमारे MMF से कि वो आएं और प्रेज एंड वर्शिप में हमारी अगुवाई करें। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि आज हम प्रभु के चरणों में आ सके और हम सब इकट्ठा हो सके प्रभु की स्तुति आराधना के लिए। तो आइए हम सब खड़े हो जाएं और प्रभु की स्तुति करेंगे और गीत गाएंगे। इसके बोल हैं, आया है यीशु आया है। क्योंकि अब जब क्रिसमस के दिन स्टार्ट हो गए हैं तो हम सबको अपनी तैयारी करनी है और हम जोर से और प्रभु की स्तुति करते रहें। आइए हम गाते हैं। आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, सुंदर दिले साथ आया है, सुंदर दिले साथ आया है, आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, सुंदर दिले साथ आया है, सुंदर दिले साथ आया है। जंगल में मंगल दूत मिले गाते, जंगल में मंगल दूत मिले गाते, जय जय हो
गुनहगारों को दे दे सहारा। सच में हमारा परमेश्वर हमें सहारा देने के लिए आया, हमारे गुनाहों को माफ करने के लिए आया। और आइए हमसे इस गीत को गाएं जिसके बोल हैं गुनहगारों को दे दे सहारा। गुनहगारों को दे दे Amen.
आइए हम अगला गीत गाएं, जो हमारे गीत कहता है जागो सोने वालों, वक्त अब जागने लगा है, यानी कि हम सबको जागना है और प्रभु की स्तुति करते रहना है। तो आइए हम सब गीत को गाएं, ताली बजाते हुए गाएं और जोर से गाएं। जागो सोने वालों, आइए हम अपने मनों को तैयार करेंगे प्रभु के वचन को सुनने के लिए। और ये आखिरी गीत जो वो बताता है हमें बहुत तेरी स्तुति और आराधना, सच में हमारा परमेश्वर जो है स्तुति के योग्य है। तो आइए हम उसकी स्तुति और उसकी आराधना करें और इस गीत को गाएं और मन को प्रभु की ओर लगाते हुए इस गीत को गाते हैं। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी पूरी जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हमारे जीते दास प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद शुक्र आपकी तारीफ करते समय के लिए परमेश्वर। प्रभु जी, आपने हम सबको ये मौका दिया है कि प्रभु हम इस वक्त प्रभु आपके चरणों में आ सके। प्रभु जी, हमारे गीतों को गाए जाना और परमेश्वर आपकी स्तुति करना सब कुछ आपके ग्रहण में ठहरे। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपके वचन के लिए जो हम आपके भक्त के द्वारा प्रभु जी सुनते हैं। प्रभु जी, वो वचन हमारे जीवन में 30 गुना 60 गुना और से कई अधिक फल लाने वाला हो सके। प्रभु जी, हमारे जितने भी बहन भाई इस वक्त प्रभु जी आपके वचन को सुनने के लिए बैठे हैं, प्रभु जी सबको अपनी आत्मा से भरे और सबको अपनी तैयारी रहने ताकि वो लोग प्रभु जब आपके वचनों को सुनते हैं प्रभु जी तो उसको चिंतन और मनन करने वाले हो सके। प्रभु जी, हम सबके साथ रहें, हम सबको अपनी मदद हमारी सहायता करें, इस भयानक बीमारी से हम सबको बचाए। बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हमारे छोटे से बच्चे प्रार्थना को सुनने के लिए, क्योंकि हमने तो उद्धारकर्ता प्यार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगा है, आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इन गीतों के लिए। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। अब ये वक्त होगा अजीज़ों कि हम आज के मनन को, आज के सरमन को, आज के वचन को हम सुनेंगे रेवरेंड डॉक्टर जॉन आर विश्वास के द्वारा। Let us prepare our hearts, mind and soul to hear the word of God by his humble servant Reverend Dr. John R. Vishwas. So may I request Reverend Dr. John R. Vishwas, please come and share the word of God with all of us. प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र समय के लिए। और आज से हम अपनी कलीसिया में और सार्वभौम कलीसियाओं में प्रभु के प्रकट होने के दिन के पहले रविवार को मना रहे हैं, द डे ऑफ एडवेंट, द फर्स्ट संडे। और मेरी आशा है कि हम इन दिनों में आशीष प्राप्त करेंगे। और आज मैं संक्षेप में आपके सामने इस संडे के बारे में कुछ बोलूँगा, फिर आज के वचन पर हम ध्यान देंगे। डियर फ्रेंड्स, टुडेज लेसन हैज ऑलरेडी बीन रेड, that is found in St. Luke's Gospel chapter 1 and 46 to 56. And I hope that as we celebrate the Advent season this year, though this year it is quite different than other years, because this year our church is closed since now almost 8 months. We started closing the church since the long lockdown started in the month of March last week, and since then we have not come to the church for worship. It's a long gap, and because of that gap we are confined to our homes, and we started the Sunday worship by link, which is still continuing, and I hope that it will continue for some more time because of the seriousness of the pandemic that we are having now. This pandemic situation is prolonging, and recently it has affected a lot of people, especially the old one, the senior citizens and the little children also. So we need to be aware of this and live a life of protection, and let us protect ourselves. We have been doing so well, and let us continue this. प्रिय मित्रों, इस साल जो हमारा ये सीज़न है एडवेंट का, ये इस बार काफ़ी अलग रहेगा अलग सालों से, दूसरे सालों से, क्योंकि हर साल हम अलग अलग प्रोग्राम्स करते हैं। 4 संडे में वाइट गिफ्ट संडे होता है, बाकी और बातें, लेकिन इस साल हम कुछ भी ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक तो ये तकलीफ़ है, बीमारी है, महामारी है जो सारे दुनिया में फैली हुई है। और दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट के कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, और अभी जो बातें हो रही हैं उसके अनुसार केवल 50 लोग इकट्ठे हो सकते हैं। इसका मतलब अगर हम चर्च खोले भी तो 50 लोगों को रिस्ट्रिक्ट कैसे करना, काफ़ी लोग हैं, कितनी वर्शिप करेंगे, सारी बातें हैं। और एक और बात जो है हमारे सामने कि भाई हर एक को सैनिटाइजर से अपने हाथों को धोना है और सोशल डिस्टेंसिंग को मानना है, चर्च के अंदर भी ऐसे ही बैठना है। तो इससे अच्छा होगा कि हम थोड़े दिन और ठहरे रहें, और मैं सोचता हूँ कि ये पूरा महीना ऐसा रहेगा, और दिसंबर भी कुछ समय तक ऐसा रहेगा। हम आज एडवेंट सीजन के पहले संडे को मना रहे हैं, और एडवेंट का मतलब होता है प्रकट होना, वेटिंग अपॉन
the first coming of Jesus Christ. और जब हम प्रतीक्षा की बात करते हैं तो इसमें हमारे मनों के अंदर कई बातें इस साल आ रही हैं, क्योंकि इस साल एक अलग साल है बाकी सालों से, जहाँ पर हमारे चारों तरफ लोगों में एक निरुत्साह है ना। बहुत सी नौकरियां समाप्त हो गई और बहुत से लोग परेशान हैं। बहुतों को आधी वेतन मिल रही है, कुछ को 1/4 मिल रहा है, कुछ को 1/3 मिल रहा है। और इस प्रकार से घर में भी परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं। और एक बहुत बड़ी परेशानी जो इन दिनों में है वो हमारे प्यारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पिछले करीब 9 महीनों से स्कूल नहीं जा सके। स्कूल कॉलेजेस बंद हैं और वो घरों में कन्फाइंड हैं, और इससे उनको तकलीफ़ हो रही है, हम जानते हैं। और ये तकलीफ़ हम सब के लिए तकलीफ़ का कारण है। हमें नहीं पता कि ये तकलीफ़ कब तक रहेगी, हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि तकलीफ़ जब तक रहेगी ये सचमुच में तकलीफ़ की वजह है हम सब के लिए, खासकर बच्चों के लिए। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम सब की सहायता करें, और इस निराशा के बीच में, in the midst of this uncertainty and hopelessness and the panic due to this coronavirus disease, there's a hope of glory that Jesus will come again. But he came first time almost 2000 years ago into this world from heaven, and since then we celebrate this Advent season. I have told you, and you know very well, that in Christendom, in the Church of Jesus Christ, there are two main seasons. Number one is Advent season, and the second one is Lenten season. In the Advent season, we prepare ourselves to rejoice in the Lord for His first coming as a baby in the manger in the town of Bethlehem, near the city of Jerusalem. And AD BC 4 he was born, and then the second coming will be in a tremendous way. He will come openly, and he will now come as a judge of the entire universe. And the Bible says that he is going to sit on the throne and judge every nation. Even you go read about that in the St. Matthew's Gospel, chapter 25, verse 31 onwards, and how he will make the judgment. We read about everything there. Anyhow, let us look to the Lord today in prayer as we prepare ourselves for this message. प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए आज हमारे बीच में है, और हम चाहते प्रभु कि इन बातों को जब हम आज सोचते हैं आप हमसे बातचीत करें। इस एडवेंट सीजन के लिए प्रभु जो आपने दिया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं, विनती करते हैं प्रभु इसके महत्व को समझें, अपने जीवनों को आपके सामने जांच सकें। हम इस हर एक पर आपके आशीष हो, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friend, the chapter that was read to all of us, our scripture reading, is from St. Luke's Gospel, chapter 1 and 46 to 56. हमको हमारे सामने पढ़ा गया लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, उसके 46 से 56 पद तक, और हम आज उसके कुछ पदों पर ध्यान देंगे। मैं सोचता हूँ कि ये प्रार्थना, ये जो मैग्निफिकेंट था, आज पुरानी होगा तो अगले रविवार को हम इसमें आगे देखेंगे, लेकिन हम कुछ बातों को आज देखेंगे। जो यहाँ का जो इंट्रोडक्शन है वो ये है कि इसका वर्णन किया जाता है, पाया जाता है 39 पद से 39 पद से लिखा है, उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर इलिशिबा को नमस्कार किया। ज्यों ही इलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और इलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तो स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। देख, ज्यों ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। हम इसको अंग्रेजी में पढ़ते इस प्रकार से पढ़ते हैं, लिखा है, इन दोज डेज मेरी अरोज एंड वेंट विथ
haste into the hill country to a town in Judah. And she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. And when Elizabeth heard the greetings of Mary, the baby leaped in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. And she exclaimed with a loud cry, "Blessed are you young among women, and blessed is the fruit of your womb. And why is that this granted to me, that the mother of the Lord should come to me? For behold, when the sound of your greetings came to my ears, the baby in my womb leaped for joy." मित्रों, यहाँ पर एक ऐसा वर्णन है जो हमारे जीवन को सचमुच में प्रभु के वचन को पढ़ने या समझने के लिए प्रोत्साहित करता है। यहाँ जो बैकग्राउंड है वो ये है कि 6 महीने पहले जकरिया को बताया गया था, जब वो पवित्र मंदिर में धूप जला रहे थे, स्वर्गदूत ने उसको बताया कि तेरी पत्नी के एक बेटा उत्पन्न होगा, और उसने विश्वास नहीं करा। तो स्वर्गदूत ने कहा कि जब तक ये पूरा ना हो तब तक तो बोल नहीं सकेगा। और जब बच्चा पैदा हुआ, उसके नाम रखने का समय आया और उसने पट्टे पर लिख के दिया, इसका नाम यूहन्ना रखा जाए, और तब से वो बोलने लगा। खैर, उसके पहले यूहन्ना के जन्म के ठीक 3 महीने पहले जिब्राइल स्वर्गदूत भेजा गया मरियम के पास, और हम इसका वर्णन लूका के 2 अध्याय में पढ़ते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह मरियम के गर्भ में आए और मरियम फिर से वहाँ से उठ करके एलिशिबा के पास गई, एलिजाबेथ के पास गई, और उसने उसको कहा, एलिजाबेथ ने उसको कहा, क्या कहा, यहाँ लिखा हुआ है, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। यह अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई? Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And why is this granted to me, that the mother of my Lord should come to me? अब ये रेवलेशन था, ये प्रकाशन था दोनों के लिए, मरियम के लिए और एलिजाबेथ के लिए, एलिशिबा के लिए। वो उस बच्चे के माँ बनने वाली थी जो यीशु मसीह का मार्ग तैयार करने वाला हो। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह जो पैदा होने वाले थे हमारे उद्धार के लिए, वो मरियम के द्वारा पैदा होने वाले थे, और दोनों यहाँ मिलते हैं उनके जन्म के कुछ समय पहले, और दोनों ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। एलिशिबा ने मरियम के लिए ईश्वर का धन्यवाद करा कि हे परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ कि ये महिला जो आपकी माँ बनने वाली है मेरे घर आई है। और निश्चित रूप से इनका आपसी संबंध था, ये रिलेटिव्स थे, और इसी प्रकार से मरियम ने भी इस बात को उसको बताया, और दोनों एक दूसरे मिले और एक दूसरे को खुशामदीद कहा, और कुछ समय तक मरियम एलिशिबा के साथ उसके घर में रही। अब यहाँ पर मरियम के गीत का वर्णन है जो मरियम ने उस समय कहा जब वो एलिशिबा से मिली, और उसने क्या कहा, यहाँ लिखा है, तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। माई सोल मैग्निफाइज द लॉर्ड। परमेश्वर की आराधना करना ये जीवन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और दाऊद के भजन में हम पढ़ते हैं, भजन 103 के 1 से कुछ पदों को पढ़ते हैं। दाऊद कहता है, हे मेरी आत्मा, हे मेरे मन, तो यहोवा को धन्य कहा। ओ माई सोल ब्लेस द लॉर्ड। हे मेरी आत्मा, ईश्वर को धन्य कहा। इस प्रकार से दाऊद ने इस बात को महसूस करा कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किए, इसलिए मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। और यह मरियम कहती है, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। मित्रों, हम कब प्रभु की बड़ाई करते हैं? When you magnify the Lord, when you recognize, जब आप इस बात को महसूस करते हैं, इस बात को जीवन में महसूस करते हैं कि परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए बड़े बड़े काम किए। परमेश्वर रोज हमारे जीवन के अंदर बड़े काम करता है, रोज करता है। उसके कामों की व्याख्या हमारे जीवन में अगर हम करने लग जाएं तो इतने ज़्यादा हो जाएंगे, इतने ज़्यादा हो जाएंगे, इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि उनके लिए शब्द हमारे पास कम हो जाएंगे। और हम केवल यही कह सकते हैं दाऊद के साथ कि हे मेरा सब कुछ,
हे मेरे प्राण, हे मेरी आत्मा, तू परमेश्वर को धन्य कर। और यही शब्द मरियम के हृदय के अंदर से निकल रहे थे कि हे मेरी आत्मा, हे मेरे प्राण, प्रभु की बड़ाई कर। मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। मित्रों, इस बड़ाई के अंदर पॉजिटिविज्म है, सकारात्मकता है। परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर रोज बड़े बड़े काम करता है। मित्रों, रोज बड़े बड़े काम करता है। हम उसके कामों को अपने जीवन में अगर गिनना चाहें तो हमारे जीवन के दिन कम पड़ जाएंगे, लेकिन वो काम बहुत ज़्यादा है। जब हम माँ के घर में आते हैं उस दिन से लेकर जब तक दुनिया में आते हैं, इसके बाद जब तक दुनिया में रहते हैं, इसके बाद जब दुनिया से जाते हैं, तमाम लंबे अंतराल के अंदर परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता रहता है। और आगे भी हम उसकी योजना में यहाँ से जाते हैं। हमारे संसार में जाना, संसार से जाना, अगर हम प्रभु के विश्वासी हैं तो उसकी इच्छा में, और एक दिन हम प्रभु के पास पहुंचाए जाएंगे जहां अनंत काल तक उसके साथ रहेंगे। ये सौभाग्य प्रभु ने हमें दिया है। इस संसार के दौड़ भाग में, खासकर इस समय जबकि ऐसा माहौल है, डियर फ्रेंड्स, व्हेन वी गो थ्रू दिस टाइप ऑफ पैंडेमिक सिचुएशन, देयर इज होपलेसनेस, एज आई सेड अर्लियर, hopelessness outside, hopelessness inside. As I said, and you know very well by this time, it's almost 8-9 months now, how many of our young people have lost their jobs? How many of the grown-up people have lost their jobs? How many jobs are no more existing? Not only you talk about job, but government post, and some of the business people had to close down their business because there is no other hope for them. And then for last 9 months school and colleges are closed. Don't you think that this is a very unique time in the history of our entire world? And then we are all wearing the mask now, protecting ourselves. Then there's a social distancing. We stand, at least have a gap of 3 to 4 feet. And then we wash our hand by the sanitizer every time. And then many other things. We are confined to our homes. It may be a small house, 1-room apartment, 2-room apartment, or sometime in the slum. Many times when we live in a good house, God has given us graciously, but there are people who are living in the slum, and they have to confine themselves in that slum, in that small room of 5-6 people. How they're managing is beyond our understanding. But in spite of everything, God has been so faithful to us. He has been giving us these days with the hope that I am with you. Psalm 46 verse 10 says, "Be still and know that I am the Lord. I am exalted among the nations." He is exalted among the nations. There will be no end of His reign because He is gracious God, He is mighty God, and He is there all the time in our lives. Dear friends, we want to praise the Lord for that. So, Mary said, "My soul magnifies the Lord." And then she said here, the second thing, मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, and my spirit rejoices in God my Savior. Our act of rejoicing, our act of becoming happy is not depending on the world situation or the thing that we enjoy in life. Talk about food, talk about clothing, talk about good house, shelter, talk about any other facility that God gives us every day in this life. This satisfies us temporarily, but this should not be the cause for our true happiness. And that is what the Lord said in St. John's Gospel chapter 14. Let your heart not be troubled. I have mentioned for you, I have houses for you, and I am going to build those houses for you. Let your heart not be troubled. And then in verse 26-27 he says, "My peace I give to you." Have you thought about the peace of Jesus Christ that He gives to us?
we have our own problems, friend, in our own life, physical body also, and we go through pain and suffering and fever and whatnot. But in spite of everything, he says, "My peace is your portion, should be your portion." And therefore, here Mary said, "And my spirit rejoices in God, my Savior." We rejoice in Him. Our happiness is based upon the Lord, our Savior. Why? Because in Him we are we become carefree of our burden of sin. When you trust Jesus, we believe in Jesus, your burden of that you are sinful is gone. He covers your sins with His blood, and He takes away your sin from you, so that it will not come back to you. But provided I have repented, provided you have repented. And that is the reason why we are happy in the Lord. Be in the Lord is a cause of our happiness, cause of our joy. And that's why the Word of God says, "The joy of the Lord is my strength." It gives me inner strength, inner courage, inner strength to go in the Lord, grow in the Lord day by day. And that is very important. And I want to say very clearly here that in the Lord we are happy, and may God bless all of us, lead all of us, and guide as we prepare ourselves for His advent. The third point that I see here is found in verse 48. क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है, इसलिए देखो अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे. For he has looked on the humble estate of his servant. For behold, from now on all generations will call me blessed. Now, Bible is full of the teaching that we read, and I like to mention certain people's name who were humble and they were exalted. They were given reward of their humility. Joseph, Yusuf, Genesis chapter 41, 1 to 14. Genesis 41, 1 to 14. 44, sorry. Then David, King David. 1 Samuel 18 chapter, and then 2 Samuel chapter 7. 1 Samuel 18 chapter, 2 Samuel chapter 7. Then Mordecai in the book of Esther was so humble. Esther chapter 6, 6 to 14. Esther chapter 6, 6 to 14. And then we also read about Daniel. Daniel के बारे में पढ़ते हैं. दानियल की पुस्तक उसका पहला अध्याय 8 से 21. दानियल पहला अध्याय 8 से 21. और फिर यूहन्ना के बारे में जो बपतिस्मा देने वाला था. मत्ती उसका 3रा अध्याय 4 पद और 11 अध्याय 11 पद. मत्ती 3:4 और 11 अध्याय 11 पद. फिर मरियम जहाँ इसका वर्णन पाया जाता है. लूका उसका पहला अध्याय 48. लूक चैप्टर 1 वर्स 48. देन यीशु मसीह खुद, जीसस हिमसेल्फ, फिलिपियंस chapter 2 verse 5 to 11. And then all believers who are humble, James 4:6, 1 Peter 5:3 to 6, 1 Peter 5:3 to 6, and then Matthew 23 verse 12, मत्ती 23 अध्याय 12 पद. तो यहाँ पर ऐसे वर्णन हमारे सामने है जहाँ पर उन लोगों को धन्य कहा गया जो प्रभु के सामने नम्र और दीन. और यहाँ पर मरियम कहती है कि क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है, और देखो अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहा करेंगे. और ये सही बात है. अगर मैं और आप प्रभु के लिए नम्र और दीन हैं तो प्रभु हमें उठाता है, प्रभु हमें खड़ा करता है, प्रभु हमारी सहायता करता है, अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करता है. चौथी बात, क्योंकि उसने उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, उसका नाम पवित्र है. For he who is mighty has done great things for me, and holy is his name. ये चौथी मुख्य बात है मरियम की प्रार्थना में धन्यवाद के मैग्निफिकेशन. वो कहता है कि उस शक्तिमान सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए. ना परमेश्वर हमारे जीवन में क्या क्या काम करता है. हम उसकी सहायता से दुनिया में आते हैं, उसकी सहायता से हम दुनिया में जीते हैं,
उसकी सहायता से हम जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करते हैं, उसकी सहायता से अपने आप को तैयार करते हैं उससे मिलने के लिए। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर की सहायता ना हो तो हम कुछ भी नहीं है। अपने जीवन के अंतिम दिनों में जॉन वेस्ली ने कहा था, ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ हिज earthly life, John Wesley said कि सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये है मेरे साथ इस समय की परमेश्वर मेरे साथ है। The greatest of all that I can say now that God is with me, God is with us। अब मैं सोचता हूँ कि ये सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है मित्रों। इंसान चाहे कुछ भी कर ले, कितना भी कमा ले, कितना ऊंचा बन जाए, कितना बड़ा बन जाए, लेकिन अगर परमेश्वर से अलग होकर करता है, यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना के 15 अध्याय में कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। अपार्ट फ्रॉम मी यू कैन डू नथिंग। व्हाई? बिकॉज अपार्ट फ्रॉम मी योर वर्क विल बी फॉर सेल्फिश पर्पस। तुम्हारे अपने स्वार्थमय कार्य होंगे जो परमेश्वर की इच्छा में नहीं होगा। इसलिए अगर तुम जीवन में उन्नति करना चाहो, तरक्की करना चाहो, और यहाँ पर हम पढ़ते हैं यीशु की किताब के पहले अध्याय के 8 और 9 पद में यीशु कहता है, इस्राएल जाति से कहता है कि व्यवस्था के पुस्तक, किसकी व्यवस्था? परमेश्वर की व्यवस्था, उसके नियम, उसके आयन, अगर उसके अनुसार तुम करो तो तुम्हारे सब काम सफल होंगे और तुम प्रभावशाली बनोगे। इफ यू अबाइड बाय द लॉ ऑफ गॉड, your all the works will be fruitful and your impact will be great in this world, and that is what is here। परमेश्वर जो शक्तिमान है वो हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करता है, उसको रिकॉग्नाइज करना वो हमारी गवाही का सबब है। When we recognize the great work of the Lord in our life, that becomes the witness, and that was the witness of Mary, the mother of Jesus, where she said that he has done miracles in my life। उसने मेरे जीवन में the mighty has done great things for me and holy is his name। ये चौथी बात है। मित्रों, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर जो पांचवी बात है वो 50 पद में लिखा है, और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। एंड हिज मर्सी इज फॉर दोज हु फियर हिम फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मसीह विश्वास परिवार का विश्वास है। अगर आज आप प्रभु पर विश्वास करते हैं या अन्य जाति से विश्वास में आए हैं, हम नए विश्वास में जो जीवित विश्वास है, तो ये विश्वास आपके अंदर बढ़ता है और आपके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, जब तक यीशु मसीह के दूत आगमन नहीं होता, इस विश्वास में बढ़ते जाएंगे। और हम अपना विश्वास ही लोगों को, अपने बच्चों को देते हैं। वी डोंट पास ऑन टू आवर चिल्ड्रन आवर प्रॉपर्टी, आवर गुड फेम। आपको दोस आर देयर, इंपॉर्टेंट थिंग्स आर देयर, बट व्हाट प्रॉपर्टी वी पास ऑन टू आवर चिल्ड्रन? द प्रॉपर्टी ऑफ फेथ। हमारे विश्वास का धन हम बच्चों में देते हैं, उनके अंदर, और उनके बच्चों में बांटते हैं, और उनके बच्चे में भी बांटा जाएगा। और क्या विश्वास कि परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। What is the property of faith? That God exists and reward those who trust Him and depend upon Him. Dear friend, I think this is what important thing we need to understand. As we prepare ourselves for this during this Advent season, we need to inculcate that faith in us, that there is nothing called impossibility. There is nothing called impossible. With God, everything is possible. In my sick bed, in my weakness, in my all type of circumstances, when I become very weak in my physical body, when I become quite isolated in my life, His strength is there to take care of me। मित्रों, यही खास बात है, यही बात हमारे जीवन को प्रभु में आगे बढ़ाती है। आप देख रहे हैं, मेरे जिस्म को देख रहे हैं। जब मैं बीमार हुआ और 21 दिन हॉस्पिटल में रहा, अब मैं रिक्यूब कर रहा। अब प्रभु की दया से 90% अब बहुत अच्छा है शरीर में, लेकिन आप कलर देख रहे हैं, फर्क पड़ा। अभी ठीक हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं रोज़ घूमता हूँ प्रभु की दया से, सुबह और शाम को काफ़ी देर, और रिस्ट्रिक्टेड डाइट है, सब ठीक हो जाएगा धीमे धीमे। प्रभु की दया कृपा है। लेकिन इन सब चीज़ों ने, इन सब वस्तुओं ने मुझे प्रभु से कभी दूर नहीं करा। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, जब मैं हॉस्पिटल में था
एक दिन रात को 11:30 बजे मैं रोया, प्रभु के सामने आंसू बहा रहा था। मैंने कहा प्रभु आप मुझे जीवन दें, मैं उस जीवन को शुरू से आखिर तक अभी तक जो जीवन दिया उसको धन्यवाद, लेकिन अब जो जीवन देंगे प्रभु कि मैं आपके लिए जीऊँगा। अब मैंने फिर अपना आप को प्रभु के हाथ में सौंपा। मैंने कहा प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। मैं अपने आप को आपकी वेदी में सौंपता। उसके बाद हीलिंग प्रोसेस स्टार्टेड। आज मैं आपके सामने हूं। परमेश्वर हमारे साथ रहता है। वो चाहता है कि हम उस अपने जीवन का मूल जाने और उस विश्वास को अपने जीवन के द्वारा अपने बच्चों में और उनके बच्चों में और उनके बच्चों में जाने दें, जो हमने पाया है, हमारे पूर्वजों ने पाया था, उनके माँ बाप ने पाया था, उनके माँ बाप ने पाया था। हम अब उस विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं और यही हमारे जीवन का कर्तव्य है कि हम इस समय, जबकि इस एडवेंट सीजन में है, अपने आप को प्रभु के सामने पाते हैं। प्रभु आपकी सहायता करे। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं। वी प्रे फॉर यू रेगुलरली। यू आर इन आवर प्रेयर्स। यू कैन कॉल अस सम टाइम व्हेन यू हैव टाइम। वी प्रे फॉर ईच वन ऑफ यू, ईच फैमिली of Nepali, Hindi and English congregation. I know that some of us are not in good health, especially those who are elderly people. And some of the people already had gone through this positive, tested positive. But God has been so good to us that He has healed us. उसने चंगाई दी है, उसने संभाला। हालांकि प्रभु की दया से मेरा तो नेगेटिव निकला जब टेस्ट हुआ, लेकिन अलग समस्या आई थी जो उसमें से प्रभु ने मुझे निकाला और आज आपके सामने बोल सकते। ये मेरा सौभाग्य है। दिस इज काइंड ऑफ ए प्रिविलेज फॉर मी टू टॉक टू यू एंड फ्रॉम हिज वर्ड। May God bless each one of you and guide you and lead you, so that this year Christmas, even though we will be confined to our homes, but will be a experience of more happiness and more celebration and giving thanks to the Lord, for He is good and He does good thing in our lives when we trust Him, depend upon Him and grow in Him. Let's pray. आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया। हम धन्यवाद देते प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए जो आज हमारे बीच में है, और हम चाहते प्रभु कि जो वचन आज हमने सुना उसमें बढ़ सकें, ताकि हमारी ये कलीसिया आप में और तरक्की कर सकें। हमारे लोग जो बीमार हैं प्रभु उनको चंगाई दें, जो दुखी हैं प्रभु उनके दुख को दूर करें, अपनी शांति प्रदान करें। प्रभु इस सप्ताह के लिए प्रभु और आने वाले दिनों के लिए, जबकि हम इस एडवेंट सीजन में है प्रभु, आप हमारे मनों को तैयार करें। जो वचन बीज प्रभु हमारे हृदय रूपी खेत में बोया गया व्यर्थ न जाए, पर आपका आत्मा उसको सींचे, ताकि उसमें से 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल उत्पन्न हो सके। हमारे परिवारों में, हमारे बुजुर्गों में, हमारे हर एक माँ बाप पर, हर एक जवानों पर, बच्चों पर, इस कलीसिया पर आपकी आशीष बनी रहे। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें। वचन के आशीष के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद है इस सुंदर वचन के लिए। अजीजों, अब ये वक्त होगा कि हम अपने आखिरी गीत को गाएंगे, जो कि पाया जाता है इंग्लिश गीत की पुस्तक, उसका 354 गीत नंबर है 354 ओ कम इमैनुअल। लेट अस sing our last song, which is found in English hymnal number 354, O come Emmanuel, and we will collect our offering during this song. इस गीत के दौरान हम अपने हदियों को अपने जहाँ पर भी हम हैं इकट्ठा करेंगे, और चर्च ऑफिसेस खुले हैं, जब भी आप आएँ और अपने जो हदिये हैं, अपने जो ऑफरिंग्स हैं, उनको आप जमा करें। आइए हम इस गीत के दौरान परमेश्वर पिता को महिमा दें। That mourns in lonely exile.
आइए हम हदियों के लिए प्रार्थना करें, भेंटों के लिए प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान, एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर आशीषों के लिए जो कि आपने हमको दी, बहुतायत से दी है पिता। और जबकि हम अपनी भेंटों को आपके चरणों पर लेकर आए पिता, आपको ग्रहण योग्य हो और ये जो भेंटें हैं आपके जलाल में इस्तेमाल होने वाली हो सकें। हम में से सबको आप आशीष दें और पिता आपका हाथ हम सब पे बना रहे। धन्यवाद राजा यीशु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। इस प्रार्थना को आपके इकलौते बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मुबारक नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। अजीज़ों, अब ये वक्त होगा कि हम अपने चर्च अनाउंसमेंट्स को सुनेंगे और उसके बाद क्लोजिंग प्रेयर बेनेडिक्शन के साथ हम रुखसत होंगे। और मैं निवेदन करता हूँ रेवरेंड डॉक्टर जॉन और विश्वास से कि वो चर्च अनाउंसमेंट्स और क्लोजिंग प्रेयर बेनेडिक्शन के साथ हमको रुखसत करें। एंड टुडेज चर्च announcements we will be hearing by Reverend Dr. John R. Vishwas, followed by closing prayer and benediction. May I request Reverend Dr. John R. Vishwas, please come and share the church announcements with all of us. Dear friends, some of the announcement that we have for this Sunday is our worship time is now a little bit after 10 o'clock. Now it is 10:30, and we'll meet for the Sunday worship at 10:30. And keeping in mind the situation prevailing now, and as the positive reports have come from the area, and government has also decided to make the gathering in the churches from 100 to 50. So we three pastors have decided to continue with our link service rather than corporate worship in the church for a few more weeks. So next Sunday our worship time by link will be at 10:30 on Sunday, and please join us for the worship. Every Sunday we have MWIFE meeting at 2 o'clock by Zoom, and I request our young boys and girls to please join in this meeting. At 4 o'clock we have Sunday school by Zoom every Sunday, and I request our children who are the members or who participate in the Sunday school to please see that you participate, and the parents are kindly requested to please motivate your children to participate in the Sunday school. Every second Saturday we have a WCS meeting by Zoom again at 4 o'clock. So all the ladies, WCS sisters are requested kindly join in this meeting and study the word and grow in the Lord. मित्रों, हम जानते हैं कि इन दिनों में हमारे इस क्षेत्र में जो रेड जोन एरिया है आरकेपुरम का, काफ़ी केसेस आ रहे हैं, और हर रोज़ जो न्यूज़ हम देखते हैं दिल्ली के अंदर काफ़ी लोग कोरोना वायरस से ग्रस्त हो रहे हैं और पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखकर हमने सोचा कि कुछ और हफ्ते तक हम इसी प्रकार से आराधना करते रहें। इसलिए अगले रविवार को हमारे आराधना का समय होगा सुबह 10:30 बजे का, और हम लिंक के थ्रू आराधना करेंगे। साथ ही साथ हर रविवार को 2 बजे दोपहर को हमारे जवानों की मीटिंग होती है जूम के द्वारा। उसमें हमारे एम्बायब के जवान इंकरेज किए जाते हैं, प्रोत्साहित किए जाते हैं कि उसमें भाग लें। और शाम को 4 बजे हमारा संडे स्कूल का प्रोग्राम होता है रविवार को। मैं चाहूँगा हमारे सारे बच्चे, हमारे जितने बच्चे हैं कलीसिया के, चाहे नेपाली, चाहे हिंदी, चाहे इंग्लिश कॉन्ग्रीगेशन के, उसमें भाग लें। अब पेरेंट्स देखें कि वो उसमें भाग ले सकें। हर द्वितीय शनिवार को हमारे बहनों की मीटिंग होती है, WCS की बहनें हैं, वो भी जूम से शाम को 4 बजे, जिसको हमारी बहनें याद रखेंगी। मैं निवेदन करता हूँ कि जिस प्रकार से अभी तक आगे भी आप प्रेजेंट वर्शिप में हमारी मदद करिए, और हमारे असिस्टेंट पास्टर शरण सावंत आपसे संपर्क करेंगे, और मिस्टर प्रकाश
तिगा के साथ, तो आप मदद करें ताकि आप प्रेजेंट वर्शिप में भाग ले सकें, आराधना में जब तक ये जूम से चलती है। और साथ ही साथ अगर आप स्पेशल नंबर देना चाहते हैं तो इसमें आपका हार्दिक स्वागत है। Dear friends, we also have this alternate day Bible study. We have restarted it, and now we are studying about the Advent season. Even in the Bible study also, the days are Tuesday, Thursday and Saturday. Time is 7 o'clock evening. So you are kindly requested to please participate. मित्रों, मैं चाहूँगा कि आप हमारे वीकली बाइबल स्टडी में जो मंगलवार को, गुरुवार को, शनिवार को होता है शाम को 7 बजे, इसमें भाग लें। और ये लिंक है, इसमें आप भाग लें, दूसरों को प्रोत्साहित करें। हमारा विषय है एडवेंट सीजन, जिसका हम अध्ययन इन दिनों में कर रहे हैं। मित्रों, हमें बड़ा दुख है कि इस साल क्रिसमस के कोई प्रोग्राम नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि सब तरफ ये बंद है, हम आराधना के लिए नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए हम लोग कोई ऐसा प्रोग्राम प्रिंट नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी मैं छोटे भाई साहब के साथ बात करके और हम लोग थोड़ा बहुत एक ढांचा जरूर बना देंगे पूरे दिसंबर महीने का आराधना का। लेकिन हमारी मेन आराधना संडे की जो होगी ये जूम से होगी, जब तक कि सारा वातावरण नॉर्मल नहीं हो जाता। और इसलिए इस साल हम लोग क्रिसमस का त्यौहार भी ऐसे मनाएंगे। अगर प्रभु ने चाहा तो 3rd वीक में अगर कुछ ढील दी जाती है और कुछ इम्प्रूव होता है तो शायद हम चर्च में आ सकें। इसीलिए हम अपने आप को तैयार करें। लेकिन 6 तारीख को और 13 तारीख को हमारी सर्विस जो है जूम के द्वारा होगी, इसको हम ध्यान में रखेंगे। अगर प्रभु ने चाहा तो 20 तारीख से हम आराधना में एकत्रित होंगे, अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो। और हमारी आशा है कि प्रभु ऐसा करेगा, क्योंकि ये हमारे एनुअल फेस्टिवल होते हैं और हम बहुत धन्यवाद के साथ मिलते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हम इसके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। Dear friends, I request you earnestly to pray so that very soon this fear of this coronavirus may cease to exist, so that we are given privilege to meet in the church to worship. And I hope that by the 3rd Sunday it will be all right. So for 6th and 13th of December we are meeting for service by Zoom or by link. But then from 3rd Sunday maybe things will improve and we'll let you know what will happen. The church office is open from weekdays from 10:30 to 5 o'clock. So please come and deposit your dues and Sunday offerings also. And Mr. Deepak has come back after his illness. God has healed him completely and is doing well. And he came to serve here on 27th, the first day, and then I hope that he will continue to come. So he's here now in the office, and please see to that you deposit your dues. We need to also pray for our retired pastors. Definitely want to give some Christmas gift, because they are honorable retired pastors who have served for many years, and in our conference there are still some people who are retired and still doing well in their health. So may God bless them, and we as church will definitely try to help them in giving some gift with the decision of the pastor committee or pastor conference later on. हम प्रार्थना करें अपने देश के लिए, अपने देश के अगुओं के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राज्यपालगण, हमारे मुख्यमंत्री, इन सब के लिए प्रार्थना करें प्रभु का अनुग्रह पर हो। सेना के लिए, पुलिस के लिए, ताकि देश में शासन व्यवस्था बनी रहे और लोग शांति से रह सकें। हम चर्च के लिए प्रार्थना करें, मैथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के लिए। अभी हमारी रीजनल कॉन्फ्रेंस की डेट नहीं आया है, लेकिन जैसे ही आ जाएंगे मैं सोचता हूँ कि जल्दी ही इसके डेट्स आपको पता हो जाएंगे। लेकिन जो हमारी पास्टर कॉन्फ्रेंस, सेकंड पास्टर कॉन्फ्रेंस, वो हमारे चर्च में होगी 19 तारीख को, 19 दिसंबर को। और इन पर्सन हम चाहेंगे, क्योंकि इसमें रिपोर्ट अगर देनी होती है तो मेहरबानी से इस बात को याद रखें। और मैं चाहूँगा कि अपने रिपोर्ट्स जो स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन हैं, सेक्रेटरी साहब को भेज दें, ताकि उसको कंपाइल करके हर एक मेंबर्स को दी जा सके। और कोशिश हम ये करें कि सारा कार्य समय पर पूरा हो सके।
प्रभु ने चाहा तो हमारे डिस्ट्रिक्ट सेकंड कॉन्फ्रेंस होगी 21 तारीख को, और उसके बारे में जो मोड ऑफ मीटिंग होगी बता दिया जाएगा, ताकि हम उसको भी पूरा करके डिस्ट्रिक्ट का काम पूरा कर सकें। हमारे बिशप साहब के लिए प्रार्थना करेंगे। बिशप सुबोध मंडल, मैडम सुदीप्ता मंडल, हमारे दिल्ली एनुअल कॉन्फ्रेंस के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी रेवरेंड सुजीत दास, हमारे कॉन्फ्रेंस के ट्रेजर रेवरेंड वरिंदर कुमार, हमारे कॉन्फ्रेंस सेक्रेटरी के हम प्रार्थना करें रेवरेंड अश्विनी फ्रांसिस, हमारे कॉन्फ्रेंस लीडर में प्रार्थना करें मिस्टर अनिल नथानियल की प्रभु का अनुग्रह हर पर बना रहे और इस कठिन समय में हम प्रभु में आगे बढ़ते जाएं। साथ ही साथ हम प्रार्थना करें हर एक DSS के लिए, हर एक पासबानों के लिए, ताकि प्रभु की अगुवाई में हम इन दिनों में सेवा में आगे बढ़ते जाएं। अपने परिवार को प्रभु के हाथ में सौंपें, कलीसियाओं को हम प्रभु के हाथ में सौंपें। आइए हम प्रार्थना करें। आज की आराधना को ख़त्म करने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे तमाम उन भाई बहनों के लिए, जवानों के लिए, जिन्होंने आज की आराधना में हमारी मदद करी, खास करके हमारे असिस्टेंट पास्टर्स पास्टर शरण सावंत और पास्टर मान कुमार जो हमारे नेपाली कांग्रेगेशन के पास्टर हैं, मिस्टर प्रकाश तिग्गा जो हमारी मदद करते हैं रिकॉर्डिंग के अंदर और कंपाइलिंग के अंदर, और ये प्रोग्राम आपके पास पहुंचाया जाता है। उनके लिए और तमाम उनकी टीम के लिए और हमारे तमाम कलीसिया के लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ने आशीष दें। मित्रों, हम लोग यहाँ पर रहते हैं पासनेज में, और अगर आपको कोई आवश्यकता हो प्रार्थना की तो आप ज़रूर हमें फ़ोन करिएगा, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें और हम सब मिलकर प्रभु में आगे बढ़ सकें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा क्योंकि पिता परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, आपको धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के लिए प्रभु जो हमने करी। और हम जानते प्रभु कि स्वर्ग में अवस्थित प्रभु आपके सिंहासन से अब जब निहारते प्रभु, तो आपने हमारी प्रार्थना को सुनी है। हम धन्यवाद देते प्रभु आज के वचन के लिए जो हम ये सुना प्रभु, जो खास करके एडवेंट सीजन के लिए था, जो पहले रविवार को आज हमने मनाया। हमारी प्रार्थना पसलमत कलीसिया का हर एक परिवारों पर आपकी बड़ी आशीष पाई जाए। जो कमज़ोर है प्रभु शारीरिक रूप से या आत्मिक रूप से, प्रभु जी आप उनको बल दें, सामर्थ्य दें और अपना हाथ उन पर बनाए रखें। हमारे जो बुजुर्ग हैं प्रभु उनको संभालें, हर एक इन्फेक्शन से बचाएं। जो बच्चे उनकी भी सहायता मदद करें। हमारे डिस्ट्रिक्ट के तमाम पासबानों पर, कलीसियाओं पर और हमारे रीजनल कॉन्फ्रेंस पर, तमाम प्रोग्राम्स पर जो होते हैं प्रभु आपकी दया और आपकी करुणा पाई जाए। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदुस की इफ़ाक़त और शराकत हमें सारे के साथ, हमारी पूरी कलीसिया के एक एक परिवारों के साथ, एक एक बुजुर्ग के साथ, एक एक जवानों के साथ, एक एक बच्चों के साथ, हमारे WCS की बहनों के साथ, MYF के बच्चों के साथ, मेथोडिस्ट फेलोशिप, मेथोडिस्ट मैन फेलोशिप के हर एक भाइयों के साथ और कलीसिया के हर एक परिजनों के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे, आमीन।